خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب ہماری روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں اوراد و وظائف کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ کلام بھی سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. آدمی کو آدمی سے خوف ایسا الاما، آ گئے کس درد کی وادی میں ہم شاہ. کیسے ہیں حضرت صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آپ کی اجازت ہو تو ایک کلام سن لیتے ہیں. جی بالکل. جی غلام صاحب کلام پہ. سبحان اللہ. آپ کی موجودگی میں انتخاب کیا ہے حضرت علامہ نثار اجاگر صاحب کا لکھا ہوا ہے وہ کلام، اور ہنجتن پاک کی شان میں لکھا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں مائک کھول لیں. آواز تو آ رہی تھی یہاں پہ. جی اب آ رہی ہے؟ مائک ادھر تو آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں. لے لیا گیا چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں، مصطفیٰ نے چادر میں. اہل بیت ایسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں. فاطمہ محمد شبر و علی شبیر نور سے چمکتے گئے، پنجتن ہمارے ہیں. اور جو سیگمنٹ ہے ہمارا اس کا نام بھی روحانی دنیا ہے. اور اب آپ یہ شعر دیکھیں شاہ صاحب آپ کی نظر ہے. فرماتے ہیں جب مریض آتا ہے مثل ابن حنبل، ہم مثل ابن حنبل ہم 5 نام لکھتے ہیں، 5 نام لکھتے ہیں، پنجتن ہمارے گئے. جو بھی ان کا نوکر گئے ہر جگہ اجاگر گئے، سارے جگ سے اونچے ہیں یہ پنجتن ہمارے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. روحانی گلدستہ بھی آ گیا، اجاگر بھی آ گیا. کیا بات ہے. اچھا حضرت، آج بڑا اہم سوال ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں زندہ اسی لیے ہوں کہ کھانا کھاتا رہوں. کھانے کے لیے زندہ ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ زیادہ کھانا کیسا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھا کھا کے جب تھک جاتے ہیں پھر کھانا کھا لیتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ کھانے کی حوث کہیں گے اس کو، لالچ کہیں گے. کم کھانا آپ حضرات بتاتے ہیں. اگر کوئی زیادہ کھانے کی عادت میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام. یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو پھر وہ راہ سلوک میں صحیح طور پر چل سکتے. واہ واہ. کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کھاتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد پھر کھاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہی ہیں. جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں سرکار ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں ایک حکیم تھا. اچھا. اس کے پاس لوگ گئے نہیں. اچھا. تو اس نے کہا کیا بات ہے، تم لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ اچھا. تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا کہ بغیر بھوک کے مت کھاؤ. اچھا. جب تک بھوک نہ ہو اس وقت تک نہ کھاؤ.
और जब भूख थोड़ी सी बाकी हो तो छोड़ दो, यानी शिकम शेर होके मत खाओ। अच्छा, तो हम इस पर अमल करते हैं, हम बीमारी नहीं होती। हाँ, तो कैसे जाए हजरत याद है? यानी अब बगैर भूख के, अब यहाँ क्या कैफियत है, बगैर भूख के भी खाते हैं। हाँ, अब आप देखें कि सऊदी हालों में आजकल तो खैर बंद है, कितना यानी हवीस होती है कि प्लेट भर के निकाल लिया। पता है कि पूरी नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकते, फिर भी भरे जा रहे हाँ। अब सोचते हैं पता नहीं बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा। कबाब भी डाल लिया उसमें, तो बिरयानी भी डाल ली, तो कौरमा भी, हर चीज़। अब वो जब बचेगा तो वो कौन खाएगा? हाँ, अब वो तबरुक तो है नहीं कि जो मुरीदीन में तकसीम कर दिया जाए। सही। तो अब वो जो है वो सब बेकार गया। तो ये है इसराफ। तो इसलिए एतदाल होना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं आप उतना निकालें। खाने के लिए जिंदा ना रहें, जिंदा रहने के लिए खाएं। हाँ, ये बुजुर्गों का तरीका। अच्छा, यानी सहरी इस तरह खाए कि बस जिंदगी बाकी रहे। अरे सहरी में भी ज़्यादा खा लेते हैं हम, इफ्तार में भी फ़ौरन ज़्यादा खा इफ्तार में भी, यानी रमज़ान पे तो रमज़ान के अलावा जितना खाते हैं उससे ज़्यादा रमज़ान में खा लेते हैं। इफ्तार में खाते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं, फिर सहरी में खाते हैं, फिर दरमियान में भी खाते रहते हैं। अच्छा, सारा खाना थोड़ा थोड़ा खाना तो मसला नहीं है ना अपने पेट के, क्योंकि अभी मैंने खाना खाया, फिर मैं 2 मिनट के लिए साइड पे चला गया, वहाँ पराठा था तो मैंने कहा थोड़ा सा खा, तो थोड़ा सा खाया उतना ही जितना पेट में, उसमें तो मुज़ायका नहीं, ज़्यादा नहीं खाया। हाँ, ज़्यादा नहीं खाया। देखिए, एतदाल होना चाहिए हर चीज़ में। अगर एतदाल के साथ है तो फिर उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, मैदे को थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए। हाँ, और अल्लाह ताला ने जो ये रखा है ना, ये इसीलिए रखा है कि साल के 11 महीने आप खाते हैं तो 1 महीने ज़रा इसको रेस्ट दे दें। हाँ, अब जैसे कोई मशीन आती है ना, रेफ्रिजरेटर आ गया, फ्रिज वगैरह, तो वो कंपनी एक बुक भेजती है, वो कहते हैं इसको 1 दिन के लिए खाली छोड़ दो, अच्छा, इसको धो के साफ कर दो, हाँ। छोड़ दो, हाँ, उसको रेस्ट दे दें। तो इसीलिए ये मशीन जो आई, अल्लाह ताला ने इसके साथ भी एक किताब भेज दी, कुरान करीम, वाह वाह वाह, और उसमें बता दिया कि इस तरह तुम पर 1 महीने के रोज़े फ़र्ज किए गए, अब ज़रा इसको मैदे को थोड़ी देर 1 महीने के लिए खाली छोड़ दो साथ। वो भी कहे तो तो फिर- भाईजान बस कर दो यार, इतना भेज रहे हो, तो मैदा उसमें भी लेना कहे। उसमें क्या है कि यही सेहत की अलामत है। ये जो रोज़ा है ये सेहत की अलामत है कि आप एक महीने तक ये एक प्रैक्टिस कराई जा रही है माशाल्लाह। तो इस वजह से इसमें खाने में एतदाल होना सही। चाहिए। तो हमें चाहिए कि जब भी हम खाएं तो एतदाल के साथ अपना पेट देख के उस हिसाब से खाएं। ज़्यादा खाना जो ज़ाहिर बदहज़मी है और सेहत की ख़राबी। अच्छा हज़रत, इसके लिए मतलब तरगीब ही दी जा सकती है, अगर हमें ज़्यादा खाने की आदत हो जाए तो किसी से तरगीब ही ले सकते हैं, या कोई हमारे सामने ज़्यादा खा रहा हो तो उसे तरगीब ही दी जा सकती है। कोई और तरीक़ा है इसका कि वो कम खाना शुरू कर दे? नहीं, इसका सबसे बड़ा तरीका तो रोज़ा है। हाँ, कसरत से रोज़े रखेंगे, खुद ब खुद सब्र, नफली रोज़े भी रखें। नफली रोज़े, हाँ, पूरे साल। जैसे हर पीर और जुमेरात का सुन्नत है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम रखते। जी जी। इसी तरह जो है 13, 14, 15 के अय्याम बैस के रोज़े। तो बुजुर्गान दिन इसीलिए कसरत से पूरे साल रोज़े रखते थे। जब कोई ऐसा चीज़ आई उसमें फ़ौरन रोज़ा रख लिया। कि रोज़े से सब्र का मादा इंसान के अंदर पैदा होता है। क्या बात। ये नहीं कि खाना है तो मैं एकदम टूट पड़ूँ, मैं उसको खा जाऊँ, ये नहीं, सब्र ज़ब्त ये रोज़े से पैदा होता है। अच्छा, एक सवाल उजागर साहब करेंगे आपसे रूहानी एतबार से, लेकिन पहले मैं कर दूं, इसके बाद अगला सवाल आप करेंगे, ठीक है? आप सोच लीजिएगा क्या सवाल करें। अच्छा, दुआ के लिए किसी दूसरे को कहना जी कि आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, ये कैसा है? और कोई हमें कहे कि आप अपनी दुआ में मुझे याद रखना, तो उसके लिए मैं दुआ करूँ, ये कैसा अमल है? दोनों अमल दुरुस्त हैं। दोनों एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ जिसका मफहूम यह है कि तुम उन ज़बानों से दुआ करो जिनसे तुमने गुनाह नहीं किए। अच्छा, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी व अबी, हमारे पास तो ऐसी ज़बानें नहीं कि जिनसे हमने गुनाह ना की हो, कभी ना कभी झूठ बोला, कभी ग़ीबत की, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़बान से निकल गई। फरमाया, तुमने दूसरों की ज़बानों से गुनाह नहीं किए और उन्होंने तुम्हारी ज़बान से गुनाह नहीं किए, तुम उनके लिए दुआ करो, वो तुम्हारे लिए दुआ करें। वाह वाह अल्लाह ताला दोनों की दुआओं को एक दूसरे के हक़ में कबूल फरमाते। वाह 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 वाह। इसीलिए बुजुर्गों से हम कहते हैं कि अपनी दुआ में याद रखें। बिल्कुल, तो इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपने लिए भी दुआ करे, दूसरों के लिए भी दुआ करे। क्या तो उसमें क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला दोनों की दुआओं को कबूल कर लेगा और दोनों का काम हो जाएगा। क्या बात जी। उजागर साहब को सवाल करना है। अच्छा, एक हम ये चीज़ अमूमन देखते हैं, मुझे एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनसे बात कर रहा हूँ और ये पसंदीदा तरीन शख्सियत में से है माशाल्लाह। अशरफुल मशाइख कहता हूँ इनको, मैं से तो मशाइख कहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक मसला ये हमारे साथ है कि बसा औकात कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम सोते हैं ना तो मुस्तकिल ख्वाबों की एक बारात शुरू हो जाती है, यानी ख्वाब ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और अजीब सी हालत होती है। और दूसरी ये हालत है कि ख्वाबों के साथ साथ हर वक्त जब जागते हैं तो बस किसी न किसी सोच में रहते हैं और वो टेंशन क्रिएट रहती है।
बिला वजह की सोच, यानी कोई परेशानी भी नहीं है मगर सोचते रहते हैं। ये दोनों बीमारी कैसे ख़त्म हों? असल में ये उसके हालात पर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि आदमी के दिमाग पे एक सोच तारी होती है, मतलब फ़िक्रात हैं, माश की फ़िक्र है, औलाद की फ़िक्र है, दीगर फ़िक्रात जो हैं, तो उसमें क्या होता है कि ख्वाब में भी वो लाशऊरी तौर पर ये ऐसी चीज़ें वो देखता है। तो इसके लिए बुज़ुर्गान दीन ने एक बहुत अच्छा तरीक़ा बताया कि सोने से पहले 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा ये पढ़ के अपने हाथों पे फूके, अपने ऊपर दम करके सो जाए। वाह वाह। तो कोई ऐसी सूरत नहीं यानी होगी, बेख्वाबी का सिलसिला नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, और अगर ख्वाब आएंगे तो अच्छे ख्वाब आएंगे, सुभान अल्लाह। जिसका कोई ना कोई मतलब होगा और कोई कामयाबी का या किसी बुजुर्ग की ज़ियारत का, मतलब अच्छे ख्वाब आएंगे, कोई गलत ख्वाब नहीं आएंगे। अच्छा, अगर इसी यही सिलसिला जैसे अल्लामा साहब ने बताया कि पे दर पे ख्वाबों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, वो सारे के सारे अजीब व गरीब ख्वाब होते हैं। जी जी। अब आपने जो वजीफ़ा बताया वो पढ़ने के बाद पे दर पे अच्छे ख्वाब आना शुरू हो जाए, तो ये ख्वाब किसी को बताए कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं तवाफ़ काबा कर रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि मैं करबला में इमाम हुसैन को रोज़े पे हूँ, फिर मुझे ख्वाब आया कि मैं अपनी अम्मी के साथ जो है वो अरफात के मैदान में हूँ, तो ये वाले ख्वाब किसी और को बताने चाहिए या शेख को बताना चाहिए? नहीं, ये हमने गुज़िश्ता दिनों भी शायद इस पर गुफ्तगू हुई थी। तो असल में ख्वाबों का मसला ये है कि हदीस शरीफ जिसका मफ़हूम ये है कि ख्वाब जब तक बताया ना जाए वो बग़ैर सर पैर के, अच्छा। और जब बता दिया और जिसके मुंह से निकल गया, जिसने पहली मरतबा सुना वही मुरतब हो जाए। अच्छा। तो इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ अपने शेख को बताएं हाँ। और किसी आम इंसान को ना बताएं। अच्छा, शेख जो है वो फिर बताएगा कि आपका ख्वाब वाकई सही है या गलत। अच्छा। मसलन किसी बुजुर्ग की ज़ियारत हुई, अब वो कहते हैं मुझे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, या कहते हैं मुझे गौस पाक की ज़ियारत हुई, तो अब वो शेख जो है वो सही तयन करेगा कि किसकी ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। और अच्छा, उसके बाद अगर उसने आम तौर पर बता दिया, ये तो अल्लाह का करम है ना, अगर सरकार की ज़ियारत हो जाए तो सुभान अल्लाह, वो तो उससे बढ़कर तो और उसमें कोई शक भी तो नहीं है। नेमत उज़्मा है। और शक भी नहीं है, फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, सही। कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। वाह वाह। लेकिन इसमें क्या है, बताना नहीं है। अगर आपने बता दिया तो बुजुर्गों ने फरमाया वो चीज़ छिन जाएगी। और कुछ लोग तो माइक पे ऐलान कर देते हैं, मैंने देखा, ये गलत, और लिख भी देते हैं किताबों में, ये भी गलत, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें ये कि फिर वो चीज़ छिन जाती है ना। आप ऐसे को बताएं जो आपकी इस्लाह ठीक। कर सके। ठीक है, तो वक्फे के बाद यानी कि अज़ान फजर के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला इसी तरह से रहेगा। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी भी हमारे साथ हैं, हमारे 2 दीगर सना खां भी साथ हैं, उजागर साहब भी साथ हैं, अशरफी साहब भी साथ हैं। इसी तरह गुफ्तगू भी होगी, कलाम भी सुनेंगे। और सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ हज़रत साहब के लिए, अगर किसी की शादी ना हो रही हो तो कौन सा वजीफ़ा पढ़े? और कराची उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। एहलियान कराची अपने 16वें रोज़े को बंद करेंगे, अज़ान फजर दी जाएगी लाइव, और इसके बाद वापस आएंगे तो शादी नहीं हो रही उनके लिए वजीफ़ा होगा मुख्तसर से वक्फे के बाद। बस बंदों से प्यार में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
علی الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं रमज़ान मुबारक की रूह परवर नशरियात इश्क रमज़ान के साथ, जो आप TV1 से देख रहे हैं बराह रास्त। रूहानी गुलदस्ता के सेगमेंट में हम मौजूद हैं। वक्फे पर जाने से पहले मैंने हज़रत साहब से सवाल किया था, शादी ना हो रही हो कौन सा वजीफ़ा पढ़ें कि शादी हो जाए। फिर दूसरा सवाल ये है कि शादी हो गई औलाद ना हो रही हो तो कौन सा वजीफ़ा पढ़ें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन की आयत नंबर 36। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। ये फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा अच्छा, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा रोज़ाना कम से कम 40 दिन पढ़े। और अगर 40 दिन में मतलूबा नताइज ना मिले तो फिर मज़ीद इसको जारी रखे जब तक ना हो। वैसे उमूमन 40 दिन में हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद फिर दुआ करें कि जो मेरे हक़ में सबसे बेहतर हो अल्लाह तबारक व अच्छा, तआला। ये बहनों के लिए ज़्यादा है मेरे ख्याल। किसके लिए? ये मामला जी, बहन जी। ख़वातीन के साथ, बच्चियों के ये एक साथ। आलमगीर परेशानी है वालिदैन के लिए ज़ाहिर है। और ये आप सही कह रहे हैं कि ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा है। मर्द भी इसमें शामिल है। वो भी बहुत से ऐसे आते हैं कि जो मतलब किसी की माशी हालत की वजह से या कोई ख़ानदानी रंजिश की वजह से बहुत सारी, रुकावटें लेकिन आ गई। ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा है। तो इसलिए उनको चाहिए कि पूरे सिद्क़ दिल के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, वो इसकी बरकत से ज़रूर ये काम करे। अच्छा, बाज़ वालिदैन भी कहते हैं कि हमें भी कुछ पढ़ने का बताएं कि हमारी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए या जल्द शादी हो जाए, तो वालिदैन भी यही पढ़ सकते हैं या वो कुछ और पढ़ें? नहीं, वालिदैन भी यही पढ़े। ठीक है। हाँ, वो खुद पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, वो तो बेस्ट है। वरना ये कि उसके लिए वालिद, वालदा, बहन, भाई कोई भी वो किसी और के लिए भी पढ़ सकते हैं और पढ़ के फिर यही दुआ करें 101 बार 101 बार फजर के बाद सूरह यासीन की ये आयत, यह आयत नंबर 36 है। आयत नंबर 36। वाह वाह वाह। तो इससे इंशाअल्लाह देखेंगे मतलब, और अब तक बहुत से लोगों को जो बताया तो उसमें कामयाबी भी हुई। माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला का कलाम है। बेशक। और शादी हो गई, अब औलाद नहीं हो रही होती, बहुत ही मुश्किल मरहला होता है जब मियाँ बीवी जो है वो किसी और बच्चे को आंगन में, सहन में खेलता हुआ देखते हैं या उसकी रोने की, मुस्कुराने की खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं तो दिल चाहता है और रब से दुआ भी करते हैं कि हमारे घर में भी औलाद हो, हमारे आंगन में खेल रही हो। औलाद के लिए हज़रत को वजीफ़ा, औलाद के लिए बुजुर्गान दीन ने ये बताया, बल्कि हमने भी इस पर तजर्बा किया कि सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ी जाए पूरी इशा के बाद, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पूरी सूरह यासीन। पूरी सूरह यासीन। वाह, ये ख़ास तौर पे औरत पढ़े। अच्छा। हाँ, मर्द भी पढ़े तो अच्छा, अगर दोनों पढ़े, लेकिन खुसूसन ये कि औरत पढ़े और वो पढ़ कर फिर पानी पे दम करके पी ले वाह वाह वाह। रोज़ाना। तो इसकी बड़ी बरकत है और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमाता है। रईस कादरी कलाम पेश करें। माइक ऑन है इनका, रईस भाई का। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का
مدعا محمد خیال کا آسرا محمد یہی زخم جگر کا مرغم یہی زخم جگر کا مرغم انہی کا ہے اسم اعظم قرار بیتابیوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا محمد اسی تمنا پہ جی رہا ہوں اسی تمنا پہ جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر اسی تمنا پہ جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو سنے میرا ماجرا محمد میں اپنی عقبہ سوارتا ہوں میں اپنی عقبہ سوارتا ہوں انہی کو پہ ہم پکارتا ہوں میری زبان پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ ہے یا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روزے جزا محمد ہماری سانسیں رواں ہے جب تک ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی غم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک واہ 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 آمین اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے گر ان کی عزت پہ
حرف آیا تو ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، گھر ان کی عزت پہ حرف آیا. اور بڑا پیارا شعر سبحان اللہ. شبیر بھائی سبحان اللہ. کہ خدا گواہ اسے کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر. خدا گواہ اسے کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر. جو اپنے بچوں میں آج پیدا محبت مصطفیٰ کریں گے، جو اپنے بچوں میں آج پیدا. کیا بات ہے. اور دور حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے آخری شعر پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ارشاد. کہ جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو. جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو تو یقین کر لو کہ ہم نوائی، یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے رگوں میں جب تک. بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. روحانی گلدستہ میں موجود ہیں حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب. کلام پیش کریں گے، پھر سید صاحب سے کچھ سوالات کریں. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی ہے تیرا آیا. فضا میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرشتائیں گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے
زبان پہ یہ اس کا نام آیا، یہ کہنا آقا یہ کہنا آقا بغت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر، لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر، لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا تو انسان مدینے میں رہے، بدے خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت، رمضان طیبہ کی بہار، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر، لیکن نہ صبح آیا آقا کسی صورت، یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ملک کوچے میں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، اپنی جبی رہ گئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آیا ہے، بلاوے کے منتظر، لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا سید صاحب، مدینہ شریف کی حاضری کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے حضرت نے ایک عجیب و کیفیت پیدا کر دی۔ سب سے بڑی چیز
बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि कसरत से दुरूद पाक, जो जितनी कसरत से पढ़ेगा उतनी जल्दी बुलावा आएगा। और माशाल्लाह। दूसरे एक शेर है, वो भी एक नात का शेर है, और वो अक्सर हम बताते हैं, और उसमें भी वो पढ़ने से भी हाज़िरी हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। मुद्दत से हूँ मैं तालिबे दीदार मदीना, बुलवाइए बुलवाइए सरकार मदीना। वाह वाह वाह, बस ये सुभान है। अल्लाह सुभान। तो ये जो भी पढ़ता है, जिसको भी बताया, उसको बुलावा आ गया। वाह और हकीकत ये जब तक बुलावा ना आए तो हाज़िरी नहीं हो सकती, तो हमारा अकीदा है। सही। तो अब सबको चाहिए कि कसरत से पढ़ें, ताकि उस दरबार में कितने लोग तड़प रहे हैं जाने के लिए, और जो कैफियत है आप सबको पता ही है। पता नहीं हमसे क्या गुनाह हो गया कि सरकार ने दरवाज़ा बंद कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दरबार बंद कर दिया। तो हमें किसी को कहने के बजाय हम अपने गुनाहों पे नज़र करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला अपना दरबार भी खोल दे और सरकार अपना दरबार भी खोल दे, बुलावा आ जाएगा, चले जाएंगे। हज़रत दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ इलाहुल आलमीन, हम सब को रमज़ान मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद अल्लाहुम्मा आमीन। इलाहुल आलमीन, हमारे शहरों की रौनकों को बहाल फरमा, हमारे मसाजिद की रौनकों को बहाल फरमा, हमारी खानकाहों की रौनकों को बहाल फरमा, हमारे मदारिस की रौनकों को बहाल फरमा, हरमैन तय्यबैन की रौनकों को बहाल फरमा। इलाहुल आलमीन, जो वहाँ जाने के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें वहाँ की बार बार बाअदब हाज़िरी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सबको रमज़ान मुबारक की बरकतें अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम व दायम रख। मौला, इसके मिटाने वालों को मिटा दे। मौला, इसके ख़त्म करने वालों को ख़त्म कर दे। मौला, इसमें बसने वालों की इज़्ज़त और माल और उनकी जानों की हिफाजत फरमा। मौला, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा। मौला, हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख और इस्लाम पर मौत अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत में जिंदा रहें और सरकार की सच्ची मोहब्बत में मौत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर।